Hello world, welcome back to Stand Up Coder YouTube channel. I am Rishabh Raj and I believe that code should be as fun to read as a script and as powerful as a superpower. My goal is to bridge the gap between the scary syntax and creative building. And from today, we are going to start a very beautiful journey of Python. In this series, we will go from a very beginner to advanced level of Python programming language. So let's first go and read what is Python. So Python is a high-level interpreted programming language known for its simplicity, readability, and versatility. So it's a high-level language means a Python abstract away hardware complexity like memory management. It looks and feels like standard English, allowing you to focus on problem solving rather than system architecture. It's a dynamically typed language. Means you don't need to tell Python if a variable is a number or text. Example, like if you can see x is equal to 5. In other programming language like Java, we have to specify that what is the variable type of, like what is the data type of x, like it is a int or a string or a float number. But in Python, it is not required. Python is a like a smart language. It can automatically know what is the data type of my variable. So it figures out it at a runtime, making your code clearer and drastically reducing boilerplate work. And it is also an interpreted language. Unlike languages that require a long build step, Python code is executed line by line and by an interpreter. This allows for instant testing and a much faster development loop. Libraries included, like Python comes with a standard, like massive standard library from handling web requests to processing mathematical data. Most tools you need are already built in, ready to go. And the now let's go about the story how Python was created. Like he is the man behind creating a Python language. It was like he created it as a December project. Like in, if I explain, like वहाँ पे क्रिसमस प्रोजेक्ट चल रहा था इन दिसंबर 1989. गर्डिव हेनरिसन जो थे उन्होंने पाइथन स्टार्ट किया था एज ए हॉबी प्रोजेक्ट टू कीप हिम ऑक्युपाइड ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज. अब अपने यहाँ क्या होता है कि हॉलीडेज में सोचो, बताओ, उन्होंने पाइथन को एज ए प्रोजेक्ट लिया, एज ए हॉबी प्रोजेक्ट, और उन्होंने पाइथन बनाया. बट अगर हमें हॉलीडे मिलेगा तो हम लोग क्या छुट्टी लेंगे और घर पे रेस्ट करेंगे, आराम से सोएंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे. बट उन्होंने एक पाइथन लैंग्वेज बना दिया जो कि आज बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है. वो मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है. तो Python was released in 1991. It was built on a philosophy beautiful is better than ugly. और पाइथन का नेम कैसे पड़ा वो मैं बताता हूँ. अधिकतर लोग सोचेंगे कि पाइथन का नेम स्नेक से पड़ा, बट द नेम नॉट ए स्नेक. इट इज ए ट्रिब्यूट टू मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. मतलब वो इतने प्रभावित थे उससे, जो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक जो था बुक, उससे प्रभावित हुए. इंश्योरिंग द लैंग्वेज ऑलवेज मेंटेन ए सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फन. मतलब इसमें क्या था कि पाइथन लैंग्वेज को एज ए मतलब सीरियसली नहीं है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फन आना चाहिए. उसको इजी टू कोड करके पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया. तो बताओ, थैंक यू फॉर लाइक, मैं इनको बोलूंगा कि पाइथन लैंग्वेज को एक ह्यूमर की तरह और एक फन वे में, इजी टू लर्न वे में बनाने के लिए. सो ये था हिस्ट्री कि कैसे पाइथन का हुआ, कि एज ए क्रिसमस प्रोजेक्ट हुआ, देन पाइथन को का फिर हुआ. तो अब मैं बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, वेर इट इज यूज इन इंडस्ट्री डोमेन. आप देखोगे वेब बैकएंड में, वेब बैकएंड में जैसे हमारा क्या है, फ्लास्क एपीआई के थ्रू में हम लोग यूज कर सकते हैं. रेस्ट एपीआई हो गया, उसमें यूज कर सकते हैं. फ्रंट एंड से डेटा आएगा फ्रंट एंड, और बैक एंड में जाके वो प्रोसेसिंग होगा. तो एज ए हम लोग एपीआई बोल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. इन डेटा साइंस हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. डेटा साइंस में कैसे, डेटा साइंस में बहुत सारे लाइब्रेरी, जैसे मैसिव लाइब्रेरीज के बारे में मैंने बात किया था. तो इसमें लाइब्रेरीज में अपने पास क्या है कि पांडाज लाइब्रेरी है, अपने पास पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है. पांडाज क्या होता है, डेटा क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. नमपाई है, उसमें भी हम लोग मैसिवली डेटा क्लीन कर रहे हैं. मैटप्लॉटलिब है, उससे हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब से. तो ये सब चीज हम लोग डेटा साइंस में यूज कर सकते हैं. मैटप्लॉटलिब हो गया. फिर एआईएमएल में मशीन लर्निंग, जब हम लोग टेंसर फ्लो या फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स अगर कुछ बनाते हैं तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे कि टेंसर फ्लो का यूज होगा, साइकिट लर्न हो गया, वो सब
टेंसर फ्लो, साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो, साइकिट लर्न, इसमें हम लोग एज ए आई एम एल जो इंजीनियर होते हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। फिर द लैंग्वेज ऑफ एआई, ये क्या है, वाइल अदर लैंग्वेज आर यूज फॉर द यूआई, जैसे कि अदर लैंग्वेज में यूआई में हम लोग बात करें तो एच टी एम एल, सी एस एस या फिर जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो वो सब यूआई और हार्डवेयर ये सब के लिए यूज होगा। बट पाइथन क्या है, पाइथन इज वेयर द इंटेलिजेंस हैपन, 90% ऑफ एआई रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट हैपेंस इन पाइथन। आप अगर देखोगे कुछ भी रिसर्च या कोई भी चीज है तो वो पाइथन में ही यूज होता है। अगर आपको एलएलएम बिल्ड करना है, अभी जैसे कि नया ट्रेंड चला हुआ है एआई का, जेन एआई, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, या फिर न्यूरल नेटवर्क या फिर कंप्यूटर विजन, जो तो पाइथन इज इन जस्ट चॉइस, इट इज द रिक्वायरमेंट। मतलब अगर वही सेम काम अगर आपको दूसरे लैंग्वेज में करना है तो जो कोड आपको 200 लाइन ऑफ कोड करना पड़ेगा जैसे जावा में एक लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, तो पाइथन में मान के चलो आपको वो 20 या 30 लाइन ऑफ कोड में आप सेम काम पाइथन के थ्रू कर सकते हो, तो स्मॉल कोड में हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे भी पाइथन यूज होता है। अब चलिए हम लोग आगे करते हैं कि और कहाँ कहाँ पे ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्ट में भी हमारा यूज होगा। फाइल मैनेजमेंट, जैसे रीनेमिंग हो गया, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हो गया, ऑर्गेनाइज बेसिक फोल्डर और कन्वर्ट फाइल्स इन सेकेंड्स, ये सब ऑटोमेशन में होगा। वेब स्क्रैपिंग हम लोग कर सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल सोप का यूज करके वेब वेब से हम लोग डेटा ले सकते हैं, उसके लिए यूज होगा। टास्क और बोर्ड्स, ऑटोमेट ईमेल, जनरेट पीडीएफ रिपोर्ट्स और इवन कंट्रोल योर माउस एंड कीबोर्ड, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। ये सब ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में हम लोग पाइथन का बहुत ज्यादा यूज होता है। मान के चलो कि अगर ऑटोमेशन हम लोग को करना है कोई एडब्ल्यूएस, जैसे एडब्ल्यूएस में एक लैम्डा फंक्शन है, उसमें हम लोग लैम्डा फंक्शन पाइथन के थ्रू क्रिएट करेंगे और एक हम लोग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चला देंगे कि हाँ अगर मुझे सर्वर को ऑन करना है इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही, तो वो ऑटोमेशन हम लोग बना सकते हैं लैम्डा फंक्शन का यूज करके एडब्ल्यूएस में। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हो गया, ये मैं कर सकता हूँ। अब हम लोग कम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन करते हैं कि कैसे इजी है, तो आप एक एग्जाम्पल से देखो कि अगर हम लोग को सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है जावा में तो हम लोग को कितना लंबा कोड लिखना पड़ेगा। पब्लिक क्लास में स्टैटिक वॉइड पूरा एकदम लिख के, फिर पब्लिक स्टैटिक मैन स्ट्रिंग, फिर उसके अंदर में फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा वो प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। फिर वैसा ही सी प्लस प्लस में कि हैश इंक्लूड इंट मेन करेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग लाइन बनाएंगे, फिर उसके अंदर एस टी डी सी आउट लिखेंगे, फिर हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब लाइब्रेरी कॉल करना पड़ेगा जावा या सी प्लस प्लस में। बट सिर्फ पाइथन में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ दो एक लाइन करेंगे, ये प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देंगे, बहुत सिंपली हमारा कुछ हेलो वर्ल्ड में प्रिंट हो गया। अब हम लोग क्या चलते हैं कि अब कैरियर ब्रेक में हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा ए आई एम एल का रोल्स में पाइथन ही यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स में यूज होगा, साइबर सिक्योरिटी में भी पाइथन होगा। तो पाइथन रिमेन्स द मोस्ट लर्नड एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड लैंग्वेज ग्लोबली, अभी सबसे ज्यादा ये है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि अपना सबसे पहला स्क्रिप्ट लिखते हैं पाइथन में। तो चलो मैं डेमो दिखा के अभी आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे पाइथन को रन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने कंट्रोल कमांड कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो कमांड प्रॉम्प्ट आप सर्च करो विंडोज, अगर आपके पास विंडोज का सिस्टम है तो कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो गया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि मेरा पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं है। पाइथन डैश डैश वर्जन, तो मेरा पाइथन अभी इंस्टॉल्ड है। अब मुझे वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इस टर्मिनल में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि पाइथन पाइथन लिख के बस इंटर करूंगा, इंटर। अब मैं पाइथन के उस टर्मिनल में इंटर हो गया हूं, अब मैं यहाँ पे पाइथन का कोई भी कोड लिखूंगा तो रन करेगा। तो चलो एक सिंपल प्रिंट ही करते हैं हेलो वर्ल्ड का। ये क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, और बस हेलो वर्ल्ड लिख के मैं इंटर करूंगा तो देखो आपको आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो कॉन्ग्रेट्स कि अभी आपका सबसे पहला आप प्रोग्राम लिख चुके हैं हेलो वर्ल्ड का इन पाइथन में। सो ये एक पहला स्टेप था, आपको पाइथन अगर लैंग्वेज इंटर करना है तो ये एक
first step you can say as a day one ki how you have started the learning Python. So next what we are going to do, अभी तो मैंने नहीं बताया कि इंस्टॉल कैसे करना है पाइथन को अपने सिस्टम में। आप बिना इंस्टॉल किए ये पाइथन नहीं रन कर सकते। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो पाइथन रन नहीं करेगा। तो आप क्या करो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाँ हम लोग कैसे करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताऊंगा कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है, फिर उसको कैसे रन करना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, फिर उसको मैं बताऊंगा कि आपको फाइल पाथ में कैसे उसको इंक्लूड करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर मैं वही ये भी बताऊं कि आप VS कोड के अंदर कैसे कर सकते हो। बेसिकली हमेशा आप कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे तो रन नहीं करोगे ना, अभी ये प्रोग्राम मेरा सेव नहीं है। मुझे अगर पाइथन का प्रोग्राम लिखना है .py फाइल, तो उसके लिए मुझे फाइल बनाना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग VS कोड का IDE का यूज करते हैं। तो वो सब सब मैं आगे बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो मैं पूरा इंस्टॉलेशन का स्टेप्स बताऊंगा। फिर आप एक कमेंट कर सकते हो कि कमेंट करो कि ड्रॉप ए हेलो वर्ल्ड बिलो, कि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। फॉलो अप कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाँ इंस्टॉल कैसे करना है, रन कैसे करना है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।